To tell everything. Why were people dissatisfied with British rule in 1870 and 1880? Correct. आप बोलिए. Sir, during the period of 1870s and 1880s, two acts were introduced. First, Arm Act in 1878, in which no Indian were allowed to keep weapons like guns and anything. And second, Vernacular Press Act, in which is also introduced in the same year, in which no one is allowed to print anything against the British in their newspaper. Okay. Now, sure. Next question. Why did the Indian National Congress wish to speak for? Who did? चलो कोई अर्पित. Mayank. Indian National Congress wish to speak for all on behalf of all country peoples, on the behalf of all class, religion peoples. And sections. Sure. What economic impact did the First World War have on India? एक क्वेश्चन तो बताना पड़ेगा, बैठने के थोड़ी आते हो कि विजिटर दर्शक भी एग्जाम में बैठे हो. हाँ अर्पित. What economic impact did the First World War have on India? एक क्वेश्चन अपनी मन से चुनो. सॉरी, टाइम वेस्ट मत करो और उसका आंसर दो. क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो. बोलो. So the Muslim resolution of 1940 is for independent states and in so northwestern and eastern states. सही है. और कोई आता है? अच्छा बताया है. अर्पिता, आप ये क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए. जो हो चुके हैं उनको छोड़ के. कृतिका, एनी क्वेश्चन? कोई भी नहीं. हाँ बोलिए. कौन सा क्वेश्चन? वैसे बैठने से थोड़ी ना होगा. दिव्यांशी पढ़ो, तब तक अभी आता हूँ आपके पास. अर्पित अभी आ रहा हूँ. थर्ड बोलिए. So during World War I, the heavy taxes were imposed. On India. Increasing of Food facilities. ठीक है, अभी आता हूँ आपके पास. आप बोलो कौन सी सुना रहे हो? फिर तो सुनाओ. During first 20 years, Congress was in the war. Some moderate people were gathered in minority, but during Jhansi etc., they want seats in legislative council. और नाम बताओ. Dadabhai Naoroji, W.C. Banerjee, Badruddin Taghi, सुरेंद्र नाथ बनर्जी. और भी कोई नाम बताओ. ये सब एक बार फिर से आएंगे. कोई और क्वेश्चन पकड़ना. आप पता करो कौन सा सुना रहे हो. बताइए. सुनाओ. Taylor. Were regulars of Congress. They wanted to get all the power of India. They were also called Lal Bal. They wanted to get. all the power. ये क्या मतलब? ये कोई सेंटेंस ही हम एक ऐसी कोई बात. एक बार फिर आऊँगा. दो लोगों को यही सुनाओ. तो नाउ
How was the politics of radicals within the Congress different from the moderates? Lala Rajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, and Bipin Chandra Pal were moderate leaders of radicals in the Congress. They wanted full independence from the Britishers. And they were also called Lal Bal Pal. They highly protested in 1905 in Bengal partition, and on the other hand, many leaders like W.C. Banerjee or Dadabhai Naoroji, etc. thought that the Britishers were good at their thought, but we have to notify them. बहुत अच्छा होता है, मैंने पूरा याद किया. हाँ श्रेया, कौन सा सुना रही? दिव्या, सुनाओ. During 1921 and 1922, non-cooperation movement led by Mahatma Gandhi was full in swing. Thousands of students left their schools, lawyers gave up their practices, professors left college, many legislative council members left their seats, many writers written titles and declarations about the Britishers. Given by Britishers. Publicly, foreign clothes are burned, and in Andhra Pradesh, in Guntur, Andhra Pradesh, they organized forest satyagraha. In Ahmedabad, mill workers organized Protest for long working hours. In अभी और 2-3 पॉइंट हैं. अदिति, हाँ सुनाओ, पूरा सुनाओ. Sir, the non-cooperation movement of this gained its momentum in the year 1921 to the 1922. In this, the teachers and the professors left their schools and the colleges. Legislative council left their seats. Members of legislative councils left their seats. Many people such as Rabindranath Tagore left the titles and declaration Returned the titles and the declaration given by the Britishers. The lawyers left their courts. Publicly, many foreign clothes were burned, and liquor shops were picketed. In Guntur, Andhra Pradesh, forest satyagrahs, tribals initiated forest satyagrahs. In Kheda movement, they opposed high revenue imposed on them despite of the famine that had struck. In the Champaran movement in Bihar, they opposed the indigo plantation. Farmers opposed the indigo plantation in their fields. In the Ahmedabad movement, the mill workers opposed the mill owners for the high working hours. Long working hours. In Assam, many tea plantation workers flee to their homes during this movement. In Sindh, the Khilafat movement also started. The Khilafat movement. The Khilafat movement gained its momentum. In UP, in the Uttar Pradesh, they managed to stop the illegal eviction in their homes. People thought that the Mahatma Gandhi was Messiah, and hence they demanded whatever they wanted, and in return, they want whatever they wanted, and then put the name of Mahatma Gandhi. And said Gandhi Maharaj ki jai. And they did it in un-Gandhian ways. And they did all पूरा the तुमने कहा है, ठीक है. Now एक क्वेश्चन आपसे सुनेंगे, बताएंगे. 6 सुनाओ.
How was politics of radicals within the Congress different from that of moderates? बैठने से कुछ थोड़ी ना होगा, ये नहीं सुनानी हम भी नहीं सुनाई, कंपटीशन है क्या कोई? हाँ बोलो, कौन सा सुना रही हो? अभी बताओ, सिर्फ हमें आगे भी तो बढ़ना है, सिविक्स भी करानी, बताओ फटाफट कौन सा सुनाओ। So during first 19 years, the Congress moderate objectives. Some leaders were WC Banerjee, कांग्रेस मॉडरेट, ये कोई सेंटेंस ही नहीं बना, चलो कोई दूसरा सुनाओ, दूसरा है, हाँ बोलो। कौन सा सुनाओ। Lala Rajpat Rai और चंद्रशेखर नाम ही ठीक नहीं बता, ठीक है फिर से आएंगे, अभी और समय 15 मिनट तो दे दिया तुमको, कितना टाइम लगता है क्वेश्चन याद करने? एक क्वेश्चन में 15 मिनट लोगी। हाँ सुनाओ, कौन सा सुनाओ। Gandhiji used to break the salt law because it is a common product and Britishers take heavy taxes on it. And Gandhiji wanted to start disobedience movement by breaking the salt law. ठीक है, तो बहुत अच्छा बता दिया। Why did Gandhiji choose to break salt law? कराया नहीं, लेकिन उसने सुना दिया, फिर से सुना, सुनाओ देखो। Gandhiji chose to break the salt law because it is a common product and Britishers take heavy taxes on it. And Gandhiji wanted to start disobedient movement by breaking the salt law. सिविल डिसोबीडियंस, बहुत अच्छा, सुनाओ फिर से, रिपीट करो। Gandhiji chose to break the salt law because it was a common product in the market and the Britishers were taking the high taxes on it. In the civil disobedience movement, Gandhiji decided to break the salt law. To start civil, Then it started the civil disobedience movement. हाँ से आपने सुनाया, तो सुनाओ, बोला करो सर, आपने हमसे तो सुनाई नहीं। कौन सा बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर बताओ। हाँ सुनाइए। कितना देर ले रही हो भाई? 15 मिनट से तुम्हें क्वेश्चन ही पे जमी हुई हो। तुम्हारे को ध्यान देंगे तो फिर क्लास कैसे चलेगी? हाँ और कौन रहेगा, आप सुनाइए, कौन सा कर रही हो? सुनाओ। During Chakra's march for radicals in Congress, they want to gain complete freedom from Britishers. They rose against Britishers during Bengal partition in 1905. On the other hand, ये लाइन में से बोलो, they rose against ठीक है। on the other hand moderates were तो लाइन में ही कितना अटक रही हो? ऐसे किसी हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो क्या? यूसी स्कूल में? हाँ हुआ कुछ आपसे? सिर्फ आप ही बची पूरे क्लास में, चुपचाप बैठने से क्या होगा? चलो कोई बात। Now, 7th क्वेश्चन, श्रेया बताओ क्या बोला था, वही लिखेंगे। 8th है, बोलिए।
क्या बताया था बताइए। Gandhiji choose to break the salt law because it is in common Gandhi product. choose to break, It is in common product and market. एक मिनट धीरे धीरे, choose to break the salt law Because it was in common product and market. because it was common product in market. सर इसको खाने में भी बहुत ज़्यादा यूज Essential ingredients of in food. So As Britishers was taking high taxes on it. product in market and essential ingredient of daily food. Essential ingredient of daily food. आगे क्या बताएंगे थी सृष्टि? It was the Britishers was taking high taxes on it. Britishers were taking high taxes on it. It was the first breaking. By breaking salt law, Gandhi ji want to start civil disobedience. भाई इतना अच्छा तुमने अर्पित कहाँ से याद किया? Sir, 1913 में हुआ था. हाँ? 19 ये 1930 में क्या था? 1930 बुक से रिफर करके बताना, वही लिखा है। Yes, sir. गांधी जी wanted to start civil disobedient movement. ये सही आंसर है। Now discuss those developments of 1937 to 47 period that led to the creation of Pakistan. पलक आप ही बची हुई हैं, बताओ। हाँ बताओ। Sir, the creation of Pakistan was done in. It takes the place between. Takes place between No, sir. Sir, ये हुआ था कि जब पाकिस्तान ने अपनी जगह मांगी थी कि हमें अपना एक देश चाहिए, अपनी एक जगह चाहिए जिस पर. ऐसे नहीं बात बनेगी। हाँ बोलो। Sir, in 1940, Muslim League demanded independent state for the Muslims. They thought that during elections they observed that the Muslims were minority and they will always play second fiddle in any democratic structure of the country, and hence they should have another country in which all the Muslims will have equality and they would not play the second fiddle in the democratic country, and they will also get equal opportunities. इसको देखते हैं। अलग आप क्या बता रही थी? अच्छे लोगों के पास बैठा करो। गलत चुनाव तुमने किया, पहले तुमने मानसी का चुनाव किया, अब श्रेया का, और देखो तुम टॉपर थी। अगर अच्छे लोगों को सेलेक्ट करोगी, यही हाल ज्योति का हुआ नहीं। हमेशा ये देखो कहाँ बैठ रहे हैं, उनसे प्रेरणा लोगी। चलो 9th क्वेश्चन देखिए। गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू provincial legislatures. The Congress was victorious in 7 out of 11 provinces. A new phase of civil disobedience was started. Development of 37 to 47 period. अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीज हुआ। पहले तो इलेक्शन हुए, तो 7 प्रोविंस में वो जीत गई कांग्रेस 11 में से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि न्यू फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 30 में तो शुरू हो ही गया था, लेकिन अब उसके नए सविनय अवज्ञा आंदोलन और हुए, और भी कानून तोड़ने थे। तो इसके लिए फिर उसके बाद किस ईयर में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ? 1942 में द ब्रिटिश डिड देयर बेस्ट टू सप्रेस द मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया, क्योंकि हमें 37 से कितने तक कहा गया बोलो? 47 तक। तो क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। अच्छा, ब्रिटिश बिगेन एक्सेप्टिंग द डिमांड ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडियंस। जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया तो ब्रिटिश ने सोच लिया, वो वहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर में थी,
39 से 45 था कि नहीं, वो कमजोर हो गई थी, इंडिया में उसकी ग्रिप कम हो गई थी, उसको पैसा चाहिए था बहुत सारा, और इसलिए उसने बोल दिया कि एग्री कर गया, ब्रिटिश एग्रीड अपॉन गिविंग फ्रीडम टू अस। In 1940 मुस्लिम लीग passed a resolution demanding independent state। यहाँ से शुरू करो। So in 1940, ठीक है, पहले लिखो during क्विट इंडिया मूवमेंट, Britishers agreed upon in Quit India Movement 1942, giving independence to Indians, to Indians। वैसे आपने अदिति सही बताया है कि उनको सेकंड फेडरल स्ट्रक्चर में रखा जाएगा, तो इसलिए वो चाहते थे कि एक उनका अलग स्टेट मिले। नाउ meanwhile in 1940 Muslim League passed a resolution of independent state। Resolution of independent स्टेट, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट का रिजोल्यूशन पास कर दिया, ठीक है। इन कौन कौन सी टेरिटरी में अर्पित, बोलो, बताया था अभी आपने, कहाँ कहाँ पे बताइए। इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, यानी अगर इंडिया देखा जाए तो इंडिया में ये कौन सा प्रोविंस है, That is नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, और ये कौन सा प्रोविंस, ईस्टर्न। इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड ईस्टर्न प्रोविंस, जिसको पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बोलो, क्योंकि पश्चिम में है तो पश्चिमी पाकिस्तान। वैसे जब पाकिस्तान बना था तो उसके दो नाम थे, इसको क्या कहा गया बताओ, पश्चिमी पाकिस्तान, और उधर उसको क्या कहा गया, पाकिस्तान, और इसको पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान कब आजाद हुआ सृष्टि, पूर्वी पाकिस्तान इससे कब अलग हुआ बोलो, बोलो। और इसका क्या नाम हुआ, यही बात है, तो ये अलग हो गया। अब जरा देखिए कि मुस्लिम feared that they may be suppressed by Hindus as Hindus were majority in India। यही बात थी, अभी बताया कि नहीं उन्होंने, मुस्लिम feared that they would be suppressed in India, उनको हमेशा दबाया जाएगा, because they were in minority as minority in Indians in India। Muslim feared that they would be suppressed by Hindus as they were in minority in India। So अब देखिए चलो, a social divide created by Britishers under divide and rule policy, ठीक है।
A social division was created by Britishers and Congress failed to take both Hindus and Muslim on the same platform. कांग्रेस फेल हो गई, उनको साथ में नहीं ला पाई. और ये क्रिएशन किसने किया था बताइए? Because Britishers allotted that is legislative council seats, जो 30 legislative council उसने सीट अलॉट की थी ना, on the basis of religion. उसने किस बेसिस पर कर दी थी? मुस्लिम के लिए. So a social divide was created. Division was created by Britishers. अंडर को सोच रहे थे अगर ये डिवाइड हो जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी पावर बढ़ जाए, हम इन पर रूल भी कर लेंगे, लेकिन वो फेल हुए. दोनों ही लोग आज़ाद होना चाहते थे, इसलिए ब्रिटिशर रूल तो नहीं कर पाए. सो अंडर डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, ये राजनीति होती है. डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या होता है? फूट डालो और राज करो. So under divide and rule policy, ठीक है. अब जरा देखिए, अब एक और चीज लिखी है कि जो 46 में असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें क्या मुस्लिम लीग जीत गई थी? ये कब हुए थे? बुक में लिखा था कि नहीं? कहाँ पे है? लास्ट में कहीं लिखा था, कहाँ है? ईयर बताओ. कहाँ पे बता रहे हो देवव्रत? क्या लिखा? इलेक्शन से 46 ना, और क्या लिखा? लीव्स सक्सेस इन सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम. 46 में था ना. सो इन एक पेज और पीछे जाना पड़ेगा. सो दैट इज मुस्लिम लीग has done better during elections held in 1946. It won all the seats reserved for Muslims. उसने क्या किया? जितनी 30 सीट थी, हम लोगों ने नेट पे देखा था 30 सीट दिखाई थी. So it won all the seats reserved for Muslims. Finally, Gandhi-Jinnah Pact was signed for a separate independent state as Pakistan. अंत में क्या हुआ? And the partition of India has taken place on 14th August 1947. इस सेंटेंस को रिपीट कर दीजिए. अभी भी चल रहा है क्या वही त्योहार का मौसम? तुम सुन ही नहीं रही, तुम जवाब ले रही हो. हाँ बोलो बेटा. Finally, the independent country Pakistan was separated from India in 14th August 1947. And which pact was signed? Gandhi-Jinnah Pact. हाँ. Finally इसका वो भी बना हुआ है फिगर कि इन दोनों में गांधी-जिन्ना पैक्ट साइन हुआ. ठीक है, तो लिखिए फाइनली Gandhi-Jinnah Pact was signed. And Pakistan has got independence. बोलो शौर्य, कब आया? Sir, 14th August 1947. And Pakistan had got
independence on 14th August 1947. One day later, India also got independence. One day later, India also got चलिए हम लोग देखेंगे सिविक्स निकाल इन प्रीवियस चैप्टर वी read about two different groups. हमने ये देखा कि कैसे डिफरेंट ग्रुप्स हैं. एक तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और मुस्लिम का भी देखा कि कितने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिली है, कितने को नहीं मिली, कितने का लिटरेसी रेट क्या है, सब कुछ देख लिया. लेकिन हमको तो अब इनका सामना करना है ना. कन्फ्रंट का क्या मतलब होता है? सामना करना. तो हमें दो पावरलेस सच ग्रुप्स हैव फॉट, प्रोटेस्टेड एंड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट बीइंग एक्सक्लूडेड और डोमिनेटेड बाय अदर्स. ये लोग पावरलेस थे. क्या ये गरीब थे? क्या ये बहुत पिछड़े थे? लेकिन क्या इन्होंने संघर्ष किया? इनके नेता भी समय समय पर हुए. जैसे आपने देखा बाबा भीमराव अंबेडकर इनके लीडर्स थे. तो ये पावरलेस होते हुए भी इन्होंने संघर्ष किया. और कभी भी जो दूसरे डोमिनेंट ग्रुप थे, जो इकोनॉमिकली हाई स्टेटस पर थे, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. और इनके पास पावर नहीं थी, फिर भी क्या इन्होंने संघर्ष किया? अब जरा देखिए. नाउ religious solace, armed struggle, self-improvement and education, economic uplift, these appears to be no one way of doing this. सब कुछ इन्होंने कर लिया, लेकिन इससे कुछ बात नहीं बनी. इन्होंने अब सब तरीके से अपने आप को मतलब सिचुएशन से निकालने की कोशिश की. The choice of struggle has depended on the circumstances that the marginalized फाइट themselves. तो अंत में उन्होंने देखा कि स्ट्रगल करने से यह बात बनेगी. हम ऐसे कब तक अपने को खुद को अपलिफ्ट करेंगे? या हम पढ़ लिख कर भी वो नहीं पा सके जो वो पाना चाहते थे, क्योंकि सोशल स्टेटस कोई नहीं पा सकता. तुम कितना भी पढ़ लो, बट जो अगर दूसरे के सामने तुम छोटे हो तो वो छोटे ही रखेगा. तुमको वो प्लास्टिक के गिलास में पानी देगा, खुद अगर स्टील के गिलास में पिएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्योंकि वो तुम्हारे बर्तन भी नहीं धोना चाहता. ये चीज़ मेरे घर में भी थी. हम जिस एरिया में रहते थे वो हरिजन बस्ती थी. तो लेकिन हमारी मदर ने भी ऐसे ही बोला कि नहीं, इनको प्लास्टिक में दो. तो हम समझ ही नहीं पाते थे क्यों ऐसा कहा जा रहा है. लेकिन वो सोशल एक ट्रेंड ही चला आया है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं इनकी कास्ट ये है. तो कास्टिज्म डीप रूटेड है. आप कहीं ना कहीं या तो इनकाउंटर किए होंगे, या अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा. ऐसा कहीं ना कहीं इंस्टेंट है कि पंडित और हरिजन बैठेंगे तो उनके बिहेवियर से पता चल जाता है कि एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते हैं. बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसा हमारे सिस्टम में, लेकिन ये गलत है और इसको हमें दूर करना है. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट सम ऑफ द वेज जिसमें ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल चैलेंज एग्जिस्टिंग रिलीजियस इनइक्वलिटीज. बहुत सारे ग्रुप ने इसको किया. इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स. अब जरा देखो, इनवोकिंग फंडामेंटल राइट, constitution. Okay, now let us see the meaning of invoking. हम किसी के फंडामेंटल राइट का अगर उसको सप्रेस करें तो वो अच्छा नहीं है. जरा देखिए, कन्फ्रंटिंग मीनिंग. देखो पहले चैप्टर का नाम समझो. सामना करना. कन्फ्रंटिंग का क्या मतलब होता है? कि किसी मुसीबत या अप्रिय स्थिति का सामना करना. सामना करने को क्या कहते हैं? तो क्या ये अच्छी स्थिति है मार्जिनलाइजेशन? ये तो अप्रिय स्थिति, अनडिजायर्ड कंडीशन, और वो लोग इसका सामना कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे. लेट अस सी व्हाट डज इट मीन बाय इनवोकिंग मीनिंग. Meaning of invoke. To mention or use a law, rule, etc. as a reason for doing something. Fundamental rights. To mention or use a law, rule as a reason for doing something. यानी invoking fundamental rights.
तो कानून का प्रयोग करना, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कानून का। नहीं, तुम हमको ऐसे नहीं कह सकते कि मैं अपने घर में नहीं रखेंगे, तुम हरिजन हो, ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। अगर कोई किसी को बोल दे नहीं हम तो नहीं रखते, हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय आते हैं, तो फोन रिकॉर्डिंग ही कर ले और रिकॉर्डिंग करके दिखा दे कोर्ट में, 1 हफ्ते के अंदर उसे 2 लाख रुपए, ये हमारे सामने की बात है। एक ने कहा नहीं हम तो नहीं रखते किसी को, और मुस्लिम्स को तो हम लोग भाई नहीं रखते। मोहम्मदन एयरफोर्स का था, जबकि बोले मोहम्मदन्स को हम नहीं रखते। हम भी गए थे किसी काम के लिए, हम इसका ऑडिट कराने गए थे, तो ऑडिट कराने गए थे जायसवाल क्लासेस का, कि सब हर साल देना पड़ता है ना, तो उन्होंने बोल दिया हम नहीं रखते, उसने कर लिया रिकॉर्ड और 1 हफ्ते के अंदर उसने ये कंज्यूमर कोर्ट में डाल दिया, उनको 2 लाख रुपए देने पड़े सिर्फ इसलिए। उन्होंने बोला रीजन बताया हम तो मांस मछली पसंद नहीं करते, वो भी ठीक था, लेकिन तुमने रिलीजन बोल दिया ना, वहां तुम फंस गए। तुम ये बोल देते हम रिलीजन, उतना ही किसी से बुलवा लो, तुम्हें 2 लाख की कमाई है ना। तो दैट इज व्हाट डज इट मीन बाय इन्वोकिंग, यूजिंग लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन टू गेट योर फंडामेंटल राइट्स। यूजिंग, ठीक है, इन्वोकिंग का मतलब है, देखो क्या लिखा है कि यूज ऑफ ए लॉ, यूजिंग ऑफ ए लॉ टू गेट योर फंडामेंटल राइट्स, इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। अब इसका मतलब समझो कि in some instances the struggle of marginalized have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of fundamental rights। यदि तुमने अर्पित किसी को भी कह दिया, मोची को, नीचे मोची बैठता है, उसको तुमने कह दिया कि तुम चमार, तो तुमको 1 हफ्ते की सीधी जेल है। वो इतना ही जाके पुलिस स्टेशन में कह दे ये मुझे चमार बोल रहा है, बस तुमको जेल। यानी यू कैन नॉट यूज एनी डाउनग्रेडेड वर्ड्स फॉर दैट इट इज ए लॉ। मैंने बताया कि हम जिस बस्ती में रहते थे, तो वहाँ के जो हमारे किराएदार थे, 10 किराएदार थे, वो सब हरिजन थे। वो जब भी वो एक तो किराया नहीं देते थे, कोई 2.5 रुपए किराया देता था, कोई 2 रुपए, जबकि उस समय किराया बहुत ज़्यादा था। वो पुराने लोग थे, और साथ में ये भी कह आते थे पुलिस स्टेशन में जाके ये हमको हरिजन बोल रहे हैं, तो पुलिस आ जाती थी मेरे पिताजी को पकड़ने, तुमने हरिजन कहा इसको, तो उनको खिलाओ पिलाओ पैसा दो, तब जाके जेल से बचो। कोई हमसे पूछेगा भी नहीं कि तुमने कहा कि नहीं, बोलो चलो तुम बोला गया तुम हरिजन बोल रहे हो। ये बहुत बड़ा लॉ, समझ आ गया। कोई सिर्फ यही बोल दे कि दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है, पति को सीधे पहले तो जेल में डाला जाएगा, बाकी बात बाद में, केस नहीं चलेगा। कोई लेडी कितना कह दे, अभी इतने सख्त कानून है स्त्रियों के फेवर में, 6 बजे के बाद अगर पुलिस स्टेशन में किसी लेडी को बैठा दिया और उसने एक फोन कॉल कर दिया, वो पुलिस स्टेशन जेल के अंदर हो जाएगा। पुलिस 6 बजे के बाद किसी लेडी को जेल के अंदर नहीं रख सकते हो, 6 बजे से पहले भी नहीं, यानी रात को नहीं रख सकते हो 6 से 6 तक, दिन में बात करो जो करनी है। ये चीज है, बड़े सख्त कानून है। लेडीज अगर कुछ भी कह दे कि हमको गलत बोला, मोलेस्ट किया, गलत तरीके से देखा, चलो जेल के। एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ। अब अभी इसी फरवरी में और कठिन कानून बना दिए गए, अब तो फांसी तक का भी प्रावधान दे दिया मोदी ने। तो ये चीज है, और ऐसी स्थिति में उस लेडी को नहीं सिद्ध करना है कि ये मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको सिद्ध करना है जिसके ऊपर केस लगा। वो चुपचाप बस फाइल करके आ जाए, तुम सिद्ध करो कि तुम दहेज के लिए नहीं कर रहे। वो लेडी मजे करेगी, घूमेगी, शॉपिंग करेगी, अब सिद्ध करते रहो ये चीज ना। तो इस तरीके से देखो, अब ये वाली लाइन पढ़ो अगली। द गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड लॉज, गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड लॉज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसको कहते हैं इनवोकिंग, इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा, सुरक्षा कानून के माध्यम से। तो गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड लॉ, गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड लॉ टू safeguard fundamental rights, फंडामेंटल राइट्स। रचिता सेंटेंस पूरा करो। राइट्स ऑफ, बोलो Sir, rights of
कोई बात नहीं। हाँ सृष्टि बोलो। आद्या, So marginalized. बस चैप्टर ही चल रहा, तुमसे कठिन क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, जितना तुम समझ लो, जो सबसे सरल होगा वही पूछा जाएगा। मार्जिनलाइज्ड, जो हाशिए पर पहुंच गए हैं लोग, तुम्हारी कॉपी में भी एक मार्जिन बना हुआ है, उसके उधर जो पहुंच जाए उसको कहते हैं इसको हाशिए में डाल दिया। हटो किनारे, मेन में हम रहेंगे, तुम रहो हाशिए उस चीज को, तो उसके लिए लॉ बने। आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 सेज दैट अस्पृश्यता एक अपराध है। अस्पृश्यता, छुओ मत, अब छू लिया तो नहाओ, क्योंकि ये चमक है। इस पे बोल दिया माइक पे, अब तो कैद हो जाए। बात समझ आएगी नहीं? अस्पृश्यता यानी उनको पहले तो यही होता था, छाया पड़ गई तो नहाने जाओ, कुएं का पानी नहीं पीने तुम्हारी भूख की बात है। तो इसलिए इट सेज दैट अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम। बात समझ आई? अनटचेबिलिटी इज क्राइम। तो ये बात। अब देखो और कैसा क्राइम है? विच इज पनिशेबल क्राइम। पनिशेबल, दंडनीय अपराध है। अनटचेबिलिटी समझ लो, अस्पृश्यता, अछूतापन, जो छूना है, और एक अछूत कहते नहीं है, पहले तुमने कहा नहीं, अरे वो तो अछूत है, कई पिक्चरों में भी सुना होगा, तो इसको कहते हैं। क्योंकि जो शिट हम लोग करते हैं उसको वो लोग सर पे मैला ढो के ले जाते थे, गांव के बाहर फेंकते थे, तो लोग सोचते थे उसी से शुरू हो गया। अब उसी कैडर के लोग ही वो करते थे, तो बोले इस ग्रुप के लोग कर रहे हैं तो कोई ना कोई क्या ऐसा करता होगा। तो बल्कि जबकि हमारे यहाँ की क्लीनिंग कर रहे हैं वो, तो सफाई एक तो कर रहे हैं, और हम ऐसा सोचें वी शुड हैव ए वाइडर व्यू, वी शुड हैव ए ओपन व्यू, देन ओनली। अगर ऐसा हम करते, उनमें से बहुत सारे मुस्लिम बन गए, बहुत सारे बुद्ध बन गए, बहुत सारे क्रिश्चियन बन गए, क्योंकि तुमने उनको कभी सही किया ही नहीं ट्रीट। और उनके बनने के बाद जब वो बन गए तो पाकिस्तान अभी अभी अलग हुआ है हिस्ट्री में, ना बने होते ना पाकिस्तान अलग होता। तुमने अच्छा उनके साथ व्यवहार किया होता तो मार्जिन्स बन के आए थे, अपना काम करते रहते। उनको क्यों चौथी कैटेगरी में डाल दिया? चुपचाप अपना काम करते, गीता वेद कुरान पढ़ रहे थे, ध्यान भजन करते, उनको क्या जरूरत थी चौथी कैटेगरी? उनका भी सम्मान था, उन्हीं के देश में आए, तो ना वो ये सब बनते, न देश अलग होता, बड़ा बृहत्तर भारत रहता। दैट इज है ना, एक्सटेंडेड इंडिया, मैग्नानिमस इंडिया। अब चला देखो, तो which means that no one can henceforth prevent Dalit for educating themselves। यानी पहले वाली स्थिति अब नहीं है, दलित को तुम पढ़ने से मना नहीं कर सकते हो कि दलित हो तुम्हारा भर्ती नहीं होगा हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि भीमराव अंबेडकर ने जैसा पढ़ा है तो आगे वाले भी कैसे पढ़े। अच्छा, इसके अलावा it also means that it is wrong to practice untouchability and its practice will not be tolerated in democratic government। तो ये क्राइम हो गया। आर्टिकल 15 क्या कहता है आद्या, बताओ तो जरा। आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी पर्सन कास्ट, सेक्स, एज, जेंडर, इन सब के बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। देखो इस चीज को, आर्टिकल 15 सेज दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया, इस भारत के किसी भी नागरिक के साथ तुम इस बात पर भेदभाव नहीं कर सकते कि वो स्त्री है या वो कोई दूसरी जाति का या फिर वो नीच जाति का। सो व्हाट डज आर्टिकल 15 से? शौर्य, Sir, that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth. Place of birth. Article 15 says that no citizen of India shall be discriminated on basis of, किस आधार पर? सेक्स, यानी मेल है कि फीमेल है, और कुछ लोग तो ट्रांसजेंडर,
जेंडर के आधार पर, ट्रांसजेंडर होता है हिंजड़े, उनको भी ऐसे नहीं कर सकते तुम जाओ यहाँ से तो हिंजड़े हो, कुछ नहीं कर सकते। तो रिलीजन के आधार पर, रेस जैसे हमने बताया ना, ब्लू आइड जर्मन और ज्यूज, उनकी नीली आंखें हैं तो उनकी कैसे हैं, उनके चपटी नाक है, तो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग रेस है, वैसा उनका फेस कट होता है। कास्ट, जाति क्या है वर्ण व्यवस्था में, सेक्स तो हो ही गया, जेंडर हो गया, ठीक है, और प्लेस ऑफ बर्थ, और प्लेस ऑफ बर्थ कि आप मणिपुर में पैदा हुए, लेकिन ईस्टर्न स्टेट वालों को भी दिल्ली में बहुत बोला जाता है। सो दिस हैज बीन यूज्ड बाय दलित टू सीक इक्वलिटी, had been denied to them। तो इससे पता चलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जस्टिस दे सकते हैं। दलित्स कैन इन्वोक और ड्रॉ ऑन ए फंडामेंटल राइट इन सिचुएशन व्हेन दे फील दैट दे हैव बीन ट्रीटेड बैडली। इन्वोक का मतलब दे कैन रिफर है ना, इन्वोक का मतलब है सुरक्षा के लिए कानून का हवाला देना, अभी बताया नहीं था, सुरक्षा के लिए कानून का उपयोग, ये पूरा मतलब है इन्वोक। सो दलित्स कैन इन्वोक लॉस, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इन सिचुएशन। तो ये दलित को ये विशेष कानून है कि वे चाहें तो उन्हीं के लिए तो कानून बना, हम लोगों के लिए नहीं बना। देखो हम पंडित हैं, हमको उसने सम्मान नहीं दिया, कुछ कानून नहीं, तुमने उनका अपमान किया, उनके लिए कानून है। तो बिकॉज ऑल आर इक्वल ना। सो दलित्स कैन इन्वोक का मतलब है उसका यूज कर सकते हैं। दलित कैन इन्वोक और ड्रॉ ऑन ए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। किस राइट का वो उपयोग कर सकते हैं दिव्या, बताओ जरा, आप बताइए, हम क्या बताएं भाई। 7 फंडामेंटल राइट से किसका उपयोग कर सकते हैं? बता दिया, राइट ऑफ इक्वलिटी, हम सभी इक्वल है, तुमने हमें नीचा कैसे कहा? अगर एक्सप्लॉइट कोई कर रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो अलग है। एक्सप्लॉइट जैसे तुमने किसी नौकरानी को रखा फिर उसको खाना भी नहीं दे रहे हो, ऐसे एक्सप्लॉइट करना किसी चीज को, या उससे ज़्यादा देर काम ले रहे हो 8 घंटे से ऊपर, तो इट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और राइट टू फंडामेंटल रिमेडीज भी होता है, तुम्हें कोई भी सारे अधिकार में से कोई ले रहा है तो उसके लिए एक अलग कानून है, राइट टू फंडामेंटल रिमेडीज। तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्या राइट टू रिलीजन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर इक्वलिटी, तुम किसी को छोटा बता रहे हो तो राइट टू इक्वलिटी, वो तो तुम्हें कि किसी को मस्जिद ना जाने दो, मस्जिद वाली बात है। लेकिन तुमने ये किसी को कह दिया कि तुम मुस्लिम हो इसलिए तुम्हें हम घर नहीं देंगे, तो ये राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है। कानून ने सबको इक्वल बनाया, तुम दलित हो तो तुमको घर नहीं देंगे, तो राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन नहीं। तुम किसी को एक्सप्लॉइट थोड़ी ना कर रहे हो कि हमारे यहाँ 8 घंटे से ज़्यादा काम करो, या किसी को तुम रिलीजियस प्लेसेस पे जाने से मना कर रहे हो क्या? उसमें तुम किसी के फ्रीडम का भी उपयोग नहीं कर रहे, वो कर रहे हो, तुम उसको बांध के रख रहे हो क्या? जाए आज़ादी से घूमे, हम हमारा पिंड छोड़े, कौन सा तुम उनके फ्रीडम को कुछ थोड़ी ना कर रहे हो। लेकिन तुमने उनको इक्वल नहीं ट्रीट किया, तुम उन्हें छोटा दिखाना चाहते हो। कैसे छोटा दिखा रहे हो? नहीं, तो इसलिए यू आर ब्रीचिंग। ब्रीचिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग द लॉ, यू आर ब्रीचिंग द फंडामेंटल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, लेकिन कोई इसका, अगर तुम मान लीजिए स्कूल में इसलिए किसी को कहते हैं दलित को कि नहीं हम दलित को भर्ती नहीं करेंगे, तो ऐसे में प्रिंसिपल उसके एजुकेशनल राइट का ब्रीच कर रहा है। तुम उसको घर नहीं दे रहे हो तो राइट टू इक्वलिटी को ब्रीच कर रहे हो। ब्रीच की स्पेलिंग है उल्लंघन करना। समझ में आ रही बात? तो यू कैन नॉट डिनाई, इस तरह से आप इनडायरेक्टली बोलो, लेकिन सीधे बोल के मना करो, बहाना बना लो, लेकिन ये वर्ड नहीं बोलना किसी को। इसलिए नहीं हमारे यहाँ अभी तो हम नहीं देंगे, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे 6 महीने बाद तब हम दे पाएंगे, अभी आप जा सकते। या कोई दलित आ जाए तो
2.5 लाख रुपए महीने का किराया है, दे सकोगे? ठीक है निकलो, वो चल जाए, लेकिन सीधे मत बोलना। अब जरा देखो कि नाउ इसके बाद क्या है? अदर माइनॉरिटीज ग्रुप हैव बीन ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल राइट सेक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दे हैव particularly drawn upon the right to freedom. They have particularly drawn upon the right to freedom. बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो माइनॉरिटी को हमेशा किसी न किसी राइट की जरूरत होती है, उनके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी तो होंगे। ऐसा तो नहीं कह सकते कि मुस्लिम के एरिया में हम मंदिर नहीं बनाने देंगे, बहुत यहाँ मेजोरिटी मुस्लिम की भी है, या हिंदू के एरिया में हम मस्जिद नहीं बना सकते हैं। कोई कह दे कि नहीं मस्जिद तो नहीं बनेगी, तुम लोग यहाँ भोपा बजाओगे, लाउड स्पीकर बजाओगे, तो ऐसे कोई कह दे तो नहीं, ये गलत हो जाए। वो जहाँ चाहे हर घर में मस्जिद बना ले, नहीं, उनका राइट टू रिलीजन है। या कुछ ऐसा स्कूल है, स्कूल बोल सकता है कि हम नहीं बनाने देंगे क्योंकि हमारे इनकी जो साउंड है वो 80 डेसिबल से ऊपर होगी और हमारे बच्चों को डिस्टर्ब होगा। स्कूल बोलेगा तो फिर दोनों की बात सुनी जाएगी, क्योंकि एक एजुकेशनल राइट और एक रिलीजियस राइट का क्लैश हो रहा है, तब फिर दोनों की बात सुनी जाएगी, और सिंपली नहीं बोलेगा सर। अब जरा देखो, इन द केस ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड religious groups like Muslim and Parsis have right to be guardian of the content of their culture, right to make decision on how best this content be preserved. चाहे कोई भी किसी कल्चर का हो, वो अपनी संस्कृति के खुद ही गार्डियन है, संरक्षक। उनकी मर्जी वे गुरु ग्रंथ साहब को कैसे सुरक्षा दें। पारसियों की मर्जी, पारसी हमें मालूम है 5000 लोग हैं जिनमें टाटा बिरला है, वो अपनी जरथुस्ट्र की लिखी हुई किताबों को, क्योंकि उनके पैगंबर या हु इज द प्रॉफिट ऑफ पारसी जरथुस्ट्र हैं, ईरान के लोग हैं। ईरान को पहले फारस कहा जाता था, क्या कहा जाता था? अभी वहाँ से सबको मार दिया गया, वहाँ कोई नहीं बचा है, मुस्लिम बचे हैं। लेकिन कोई भी भारत में पारसी भी हैं, जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं, तो ये कोई भी दे कैन प्रिजर्व देयर कल्चरल स्क्रिप्चर्स, वे अपनी धार्मिक किताबों को जैसे सुरक्षित रखें, उनकी मर्जी। नो अदर कैन बी द स्टेक होल्डर। अब आगे देखो, लॉस फॉर मार्जिनलाइज्ड, तो जो दबे कुचले हैं, क्या उनके लिए भी कोई कानून है? तुमने तो अब फिर कभी किसी को नहीं कुचला है। तो लॉस फॉर मार्जिनलाइज्ड। Now, government makes laws to protect its citizen. There is not the only way in which it takes action. There are specific laws and policies for the marginalized. There are policies or schemes that emerge through our means, like setting up a committee or by taking a survey. The government make an effort to promote give opportunity to specific. ऐसा नहीं है, हिंदुओं के लिए कोई ऐसी ग्रुप नहीं बनाई गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड बना दिया है, हज कमेटी बना दी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दैट इज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये बना दिया है। तो ये सारे संगठन बनाए, पारसी संगठन, क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये इंडिया ने बनाया, उसको पैसा देती है इंडियन गवर्नमेंट, जो सबसे टैक्स मिलता है ना, उनको पैसा देगी। तो वो इंडियन गवर्नमेंट या हमारा संविधान सोचता है इनको निरंतर संरक्षण की जरूरत है, अदरवाइज अगर इनका कोई ग्रुप या एसोसिएशन नहीं रहेगा, एंड इफ इट इज नॉट फंडेड, इनको पैसा नहीं दिया जाएगा, तो ये लुप्त हो जाएंगे। एंड हाउ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन बी प्रिजर्व, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता में एकता को सुंदरता माना जाता है, जबकि दूसरे देशों में आप देखेंगे हर चीज एक ही प्रकार की होगी, विविध नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जगह जगह स्टेट के भी कल्चर को हम प्रिजर्व करते हैं। गुजरात का कल्चर गुजरात में, राजस्थान का अलग है, तुम घूमो दो चार स्टेट तो पता चल जाएगा तुमको, सब जगह सब चीज़ अलग अलग है। इवन लोगों के पहनावे से तुम पता कर सकती है, गुजराती घाघरा है, पता नहीं लग जाता है क्या, ये राजस्थानी पोशाक है। तो हमारे स्टेट का कल्चर, ड्रेस कोड, सब कुछ अलग अलग है, तो वो सब वहाँ का जो कल्चर है वो वहाँ की राज्य सरकारें प्रिजर्व करेंगी। हर एक स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे कर्नाटक की लैंग्वेज क्या है बताओ? अरे बताओ। कन्नड़। आंध्र प्रदेश की
तेलुगु, इस मलयालम, वो जैसे हम कह सकते केरल की, तमिलनाडु की, तमिल, हर जगह की अलग अलग लैंग्वेज है। गुजरात की और राजस्थान की, राजस्थानी या मारवाड़ी, यहाँ के लोग कैसी लैंग्वेज बोलते हैं? मारवाड़ी। इसी तरीके से जो कश्मीर है उनकी भी अलग भाषा है। कौन सी? डोगरी, सही कहती हो। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि अलग अलग, असम की असमिया, बंगाल की बंगाली। तो कल्चरल डिफरेंस है, तो अगर मान लो उनकी लैंग्वेज डिफरेंस है तो उसी तरह से उनके स्क्रिप्चर्स भी होंगे। हमारे यहाँ राज्यों का विभाजन भाषाई आधार पर किया गया है। सो इंडिया हैज बीन डिवाइडेड बाय फ्यू। 3-4 लोग मेज पे बैठे, बोले ये लाइन खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, बन गया इंडिया। वहीं बैठ के बना दिया इंडिया, कहीं जाना नहीं पड़ा। उनको मालूम था कहाँ कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो उन्होंने भाषा के आधार पर किया, और ये भी देखा नदियाँ कहाँ कहाँ जा रही, बस उसी के आधार पर बांट दिया। तो मेनली इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू इट्स प्रोविंसेस और स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो उससे क्या होगा, वहाँ की संस्कृति प्रिजर्व रहेगी। तेलुगु वाले जो लिखने वाले हैं वो सब तेलुगु में लिखेंगे, और उनकी अपनी एक संस्कृति भी होगी, क्योंकि वो किताबें भी तेलुगु ही पढ़ेंगे। तो क्या वे उस संस्कृति से परिचित नहीं हो जाएंगे? क्या उनके त्यौहार एक जैसे नहीं होंगे? वही चीज। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि लॉ बनाया गया, द लॉ फॉर मार्जिनलाइज्ड। देयर हैड बीन कमिटीज और एसोसिएशन सेट फॉर मार्जिनलाइज्ड। पारसी एसोसिएशन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड कमेटी, ये सब है। ठीक है। वक्फ बोर्ड को तो इतनी ताकत दे दी कि 7 लाख एकड़ जमीन उसकी होगी, वो जिस जमीन पे हाथ रख दे वो उसी की होगी। कांग्रेस ने उसको, कांग्रेस ब्लाइंड सपोर्टर थे मुस्लिम, तो उसने इतनी शक्ति दे दी कि उसने सुप्रीम कोर्ट पे उसने हाथ रख दिया। आज सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ बोर्ड का। अब बीजेपी सरकार आई है, वो सारे कानून रद्द कर रही, करी जहां तुमने हाथ रखा वो कागज दिखाओ, वो वापस ले लो, क्योंकि ऐसे किसी को असीमित शक्ति देना ठीक थोड़ी ना, नहीं। तो फिर कोई लड़ भी नहीं पाता था उसके खिलाफ, उसने जहां देख लिया तो हो गया। बहुत सारा रेलवे का जमीन मिल गया ऐसे ना। अब देखिए, लॉस फॉर मार्जिनलाइज्ड, गवर्नमेंट मेक्स एन एफर्ट to promote such policies in order to give opportunities to specific group. Government makes association for them, खुद एसोसिएशन बना दे। अगला देखो, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम, उनके अपने पर्सनल लॉ है। तलाक का अलग नियम है, कानून तलाक है, और इस वजह से शादी के अलग नियम। पर्सनल लॉ बोर्ड। अगर मुस्लिम में भी थोड़े दिन पहले ये भी कानून था कि वो अगर उसका पति चाहे तो तलाक 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 बोल किसी को निकाल देता था। तो जैसे उसकी पत्नी ने पानी दिया, उसको पानी दे रही है, उसके हाथ कांप रहे हैं, और फिर जरा छलक गया, तुमने पानी छलकाया, तलाक तलाक तलाक, जाओ अपने सब बच्चों को लेकर चले जाओ बाहर कर देगा, सड़क पे आ गई अगले ही पर। जरा सी कमी, किसने कुछ भी गड़बड़ किया जीवन में, तो उसके सर पे तलाक की तलवार है, और फिर एलमनी भी नहीं देगा। हर जाना खर्चा नहीं होता, जीवन भत्ता, वो भी नहीं देगा। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एक को दिलवा दिया था, बेचारी 71 साल की थी, तो उसका कौन सा केस है अभी भी चल रहा है। तो राजीव गांधी ने बोला नहीं, इसलिए मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। उसको बोला था सरकार ने कि 70 रुपए तो दे दो इसको महीने का खाने का, बेचारी भूखे मर जाएगी। तो उसके पति बहुत अमीर था, लेकिन उसने कहा हम नहीं देंगे, हमारे कुरान में तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को तलाक दे सकते हैं। और फिर राजीव गांधी ने संसद में बोल दिया हाँ ये नहीं देगा, और उसको कोई खर्चा नहीं मिलेगा, वो भूखी ही मरी। तो ऐसा भी होता है। तो आप समझ लीजिए कि इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो पर्सनल लॉ में शादी के कानून है, तलाक के कानून है, और मुस्लिम 4 शादी कर सकता है, इसके भी कानून। तो अब ये कानून हटने जा रहा है, क्योंकि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। उत्तराखंड में लागू हो चुका है। अब बीजेपी सरकार, मोदी सरकार कहती है ऐसे 4 कानून नहीं चलेंगे। तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार कर रहे हो तो तुम्हें कोई सजा नहीं, हो हिंदू कर दे तो सजा है, ये कैसा देश है? वो कहते सबके लिए एक होगा। तो कोई भी स्त्री है, सबके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। कोई एक घर में 4 औरत रहेंगे तो क्या 4 औरतों को सब एक अधिकार दे पाएगा? कोई पुरुष नहीं दे पाएगा, और ना उनको सम्मान भी नहीं मिल पाएगा।
तो इस तरीके से अब इसी अप्रैल में जब ये सरकार बनेगी, यूसीसी लागू हो जाएगा, ये सब बेकार की चीज़ें खत्म हो जाएंगी। 3 तलाक कानून तो अभी भी अवैध है, लेकिन अगर 3 तलाक 3 महीनों में दिया गया है तो वो वैध है, एक साथ बोला गया है तो अवैध है। कुछ लोग मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पे, टैलक टैलक टैलक, कहते बात खत्म। अब वो सब नहीं है, वो सब खत्म हो गया, लेकिन 3 महीनों में अगर 3 बार दिया है तो तलाक़े बिद्दत खत्म हो चुका। तलाक भी कई तरीके के। अब जरा देखें कि अब अफगानिस्तान का तो और कानून खराब है। अगर उसकी पत्नी ने, किसी ने लिपस्टिक लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, तो उसको तब तक कोड़े मारता है उसका पति जब तक वो मर ना जाए। वहाँ बहुत उसी के रिलेटिव से, उसके पिता से मरवाएंगे कोड़े मारने तक उसी के। और पत्नी गर्भवती है तब भी कोड़े मारे जा रहे हैं, वहीं डिलीवरी हो गई कोड़े मारे जा रहे हैं। बहुत गलत कानून है। मुस्लिम में अच्छे कानून नहीं है स्त्रियों के। हमने पहले भी बताया, उनके कुरान में लिखा है कि स्त्रियों को कैसे और कहाँ कहाँ मारा जाए, डंडे से कैसे मारा जाए, उसके ऊपर पूरी किताब लिखी कुरान। तो ये सब चीज़ें वो लोग अपने लॉ का हवाला दे के बच जाते हैं, लेकिन अब कोई बचने वाला नहीं है। सरकार ऐसी आ गई ना, वो कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता। अब फिर कोई उनके मुस्लिम औरतों ने कभी आवाज़ ही नहीं उठाई अपने अधिकारों के लिए। आवाज़ तो उठाना पड़ेगा कि नहीं ना। अब देखिए, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, देखो प्रमोटिंग सोशल जस्टिस के बारे में क्या लिखा गया है? As a part of their effort to implement the constitution, state and central government create a specific scheme for implementation in tribal areas. तो गवर्नमेंट अपनी स्कीम चलाती है ट्राइबल एरियाज में, किस लिए? उनको नौकरी देने के लिए या किसी चीज़ में। तो प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, इससे क्या उनको न्याय मिल जाएगा? अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को सीट्स दे देंगे, पावर शेयरिंग से क्या समझती हो बताओ? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में या एमपी में, लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट दे दो तो पावर शेयरिंग करेंगे। और इसी तरह से पंचायत चुनाव जो नहीं तो लोकल सरपंच है पार्षद, उसमें भी दे दो तो पावर शेयरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? साथ में उनको गवर्नमेंट स्कीम का हिस्सा बनाया जाए। दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज को उनको क्या कर रही है? सब्सिडाइज्ड हॉस्टल फैसिलिटी दे रही है। तुमको पहले हमने बताया कि नहीं, आईआईटी में उनके बच्चे चले जाते थे तो 6-6 साल तक फेल होते थे। आदिवासी मतलब ये जो SC/ST कैंडिडेट पास नहीं हो पाते थे, क्योंकि जहाँ पर ब्राह्मण का बच्चा है 98 नंबर पाकर, वो कट ऑफ लिस्ट है, वो IIT में एडमिशन नहीं पाया, और जो SC/ST है उनको रिजर्व सीट दे दी गई तो -4 नंबर पा के भी वो सेलेक्ट हो, और 98 नंबर पा के भी नहीं सेलेक्ट हुआ। इसके लिए एक मंडल कमीशन आया था और उसमें कहा गया था कि 27% SC/ST को आरक्षण दे दो। तो बहुत सारे ब्राह्मणों ने और जो छत्री थे उन्होंने अपने आप पे पेट्रोल डाल के आग लगा दी। हजारों लोग मेरे सामने ही जले, दिल्ली में जा जाके बोले तुम हमें नौकरी नहीं दे रहे, हम 98% पा के हम नहीं पा रहे हैं, और वो -4 4 सवाल गलत करके भी पा जा रहा है, और जिसने एक भी नहीं किया वो केवल नंबर लिख के है, उसके 0 है, वो तो पास हो ही गया, और जो 4 गलत करके है वो भी पास हो गया। बोले ये कैसी इक्वलिटी है, तुम कैसा फंडामेंटल राइट बनाए हो? हटाओ राइट टू इक्वलिटी, और 70 साल से वही चलाए जा रहे हो, कब तक चलाओगे? ये कौन सी इक्वलिटी है? 98 वाला बैठा है, वो चाय बेच रहा है, -4 वाले को तुमने नौकरी दे दी, ये कोई इक्वलिटी मानी जाएगी? तो बोल रहे हैं आपकी बात ही गलत है, ये कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। 10 साल 15 साल चला लिए, और संविधान में भी कहा था 5 साल के लिए रिजर्वेशन है, अब नहीं इसके आगे होगा। लेकिन पार्टियों की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि हटा सके। जो हटाएगा वो अपने 70% दलित वोटों से जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी ने हटा दिया, एक बार किसी को अधिकार दे दो, फिर हटाना आसान है क्या? क्योंकि तुम्हें उसी के वोट मांगने। कौन हटाए? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तो लेकिन उसके ऊपर मंडल कमीशन भी बैठा दिया तुमने कि और 20% दो, 27% दो, तो लोगों ने फिर तब तो आग ही लगाओ। 98% पूरी जिंदगी पढ़ के खत्म कर दो, 2 सवाल गलत करके आ गए तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, चाहे बेचो। और जो मौज मजे कर रहा है वो तो पास हो ही जाएगा। फ्री में एजुकेशन दे रहे हो, 6 साल तक हॉस्टल सब्सिडी भी दे रहे हो, उनको फ्री एजुकेशन, फेल होते रहे बैठे रहे।
ये भी चीज। तो सोशल जस्टिस के नाम पे बहुत कुछ मिल रहा है हमको, और फिर भी वो लोग क्या खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड, कि हम तो दलित हैं, शोषित हैं, हर जगह यही बात बोल देते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है ना। अभी तुमको पता है कि किसान आंदोलन छिड़ा हुआ है दिल्ली में, तो वो लोग चाहते हैं कि हर एक चीज में सब चीजें उनको फ्री भी दो, और फ्री होने के बाद उनका जो सारा फसल है वो बहुत अच्छे दाम पे लो। तो सरकार लेके उनको सड़ाएगी क्या, क्योंकि हमारी उतनी आवश्यकता ही नहीं जितना तुम उगा देते हो, हम उसको कहाँ रखेंगे। तुम तो उगाते जा रहे हो, सबका तुमको पैसा चाहिए। तो फिर अगर केवल किसान ही तो देश की सेवा नहीं कर रहा है, क्या मोची नहीं कर रहा है, उसने नहीं क्या कोई गलती कर दी है, ये कोई कपड़े बनाने वाले हैं, फिर सबको आरक्षण दो, सबकी चीजें खरीदो। तो सरकार का क्या काम है, सबकी चीजें खरीदे। कपड़े वाला कहेगा मेरा कपड़ा नहीं बिक रहा, मेरे कपड़े खरीदो। सरकार कहाँ से खरीदेगी, कोई सरकार कोई पैसा कमाती है क्या। तो इस तरीके से जैसे सारे स्टेट के लोग अपना काम चला रहे हैं, वैसे पंजाबियों को भी चलाना चाहिए। तो पंजाब के लोगों की 80% फसल सरकार खरीद लेती है, और जबकि यूपी के 0.6% की खरीदती है, 1% की भी नहीं। यूपी के तब भी मजे में, उनको हालत खराब। तो आप समझिए वो सब करोड़पति किसान होते हुए भी ऐसा कर रहे हैं। और सरकार किस लिए उनको ऐसा कर रही है, ऐसा करने दे रही, क्योंकि विक्टिम कार्ड। वो कहते हैं हम दलित हैं, हम कुचले हैं, हम किसान हैं। अपनी बात तुम मनवाते ही चले जाओगे। यदि सरकार उनकी बात मानती है तो भारत पर 17 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वो तभी पूरा किया जा सकता है जबकि सेनाओं को बॉर्डर से बुला लिया जाए, उनको बोला जाए तुम्हें वेतन नहीं दे सकते, किसानों की बात, बॉर्डर को पूरा छोड़ो। ऐसा कर सकते किसान, उनको कहां से तुम दोगे, पैसा है सरकार के पास, तो बैठे रहो। नहीं किया जा सकता ना, इतना पैसा कहां से देगी सरकार। अब जरा देखिए आगे दिया गया है रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क। तो अब आगे बात आ गई कि गवर्नमेंट गिव्स रिजर्वेशन, किसको रिजर्वेशन देती है, ठीक है। गवर्नमेंट गिव्स रिजर्वेशंस फॉर, देखो दलित है तो दलित को क्या कहोगे, शेड्यूल कास्ट, मोची, कहार, नाई, चमार, जुलाहा, ये सब कौन से होते हैं, शेड्यूल कास्ट, दलित। शेड्यूल्ड कास्ट। अच्छा आदिवासी को क्या कहेंगे बोलो, शेड्यूल्ड ट्राइब। और फिर ओबीसी को क्या कहेंगे, जैसे कहीं कहीं पर जायसवाल को भी मिला हुआ है। हम लोगों का काम है, हम लोग कलवार कहे जाते हैं, हम लोगों का काम है जगह जगह शराब बेचना, शराब के ठेके लेना। हमारे परिवार के सभी लोग इसी धंधे कि वो लोग क्या है, कलवार का काम क्या है, शराब बेचने के ठेके हैं। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ओबीसी, हम लोग बनिया हैं, बनिया तीसरा वर्ण आता है कि नहीं, लेकिन फिर भी कई लोगों ने, सरकारों ने हमें खुश करने के लिए कि इनके भी वोट ले लें, हमको भी रिजर्वेशन दे दिया। अगर लेकिन राजस्थान में हमको रिजर्वेशन नहीं दिया गया, हम यहाँ पर संपन्न हैं। यूपी में दे दिया गया है, वहां पर हम विपन्न हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ऐसे जिसका जो मन कर रहा है राजनीति में वो कर रहा है, लेकिन क्या ये आरक्षण कहाँ तक सही है, तो ये चीज क्या इक्वलिटी ला पाएगी। तो 70 सालों से आप दे रहे हो तो इससे कोई मतलब है, और एफिशिएंसी भी घट जाएगी। योग्यता के आधार पर दो ना, योग्य पढ़ाओ लिखाओ, उनको फ्री में पढ़वाओ, लेकिन रिजर्वेशन मत दो। पढ़ो, चलो फ्री में कोचिंग पढ़ो, हाँ सबके बराबर बन जाना तो तुम भी आ जाना। ये क्या मतलब हुआ कि तुम उनको अच्छा कम पढ़े हो तब भी आ जाओ, इंजीनियर बन जाओ, और जो ज़्यादा पढ़ा हटा दो, फ्री में पढ़ाओ, हमारे टैक्स से पढ़ा दो। लेकिन जब हमारा अधिकार है नौकरी का, वो तो मत छीनो। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ना पढ़े तो हटा दो, क्यों नहीं पढ़े। अदर बैकवर्ड कास्ट, कितनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, सो इफ ए पर्टिकुलर दलित कास्ट ऑन ए सर्टेन ट्राइब इज ऑन द गवर्नमेंट लिस्ट, देन ए कैंडिडेट फ्रॉम द कास्ट और ट्राइब कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो कोई अगर दलित है वो अवेल कर सकता है रिजर्वेशन, जो सीट्स हैं उसके लिए वो कर सकता है। फॉर एडमिशन टू कॉलेज, स्पेशली टू इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, अभी बहुत सारी ऐसी भी सीट्स हैं स्कूलों में, जो चाहे कॉन्वेंट हो चाहे ऐसे प्राइवेट स्कूल में, कि 10% ऐसे बच्चों को लेना है जिनसे तुम्हें फीस नहीं लेनी, फ्री वाले भी बच्चे पढ़ाने। ये भी सरकार ने लगा दिया,
फ्री बच्चों को जो पैसा नहीं दे सकते, ऐसे 10% बच्चे तुम्हें रखने पड़ेंगे। ओबीसी का कुछ अलग है, आपका क्लास होता है कि कास्ट? देखो हम कास्ट बता रहे हैं, हमें तो क्लास ही लगता है। कास्ट होता है, मैं चेक कर देता हूँ। कास्ट होता है तो मुझे भी लग रहा है, 1 मिनट चेक करें। फुल फॉर्म ऑफ ओबीसी, क्लास है। चलो अब देखिए, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज, अगले पेज पे देखो। तो इन एडिशन टू पॉलिसीज अवर गवर्नमेंट हैज स्पेसिफिक लॉ, पॉलिसीज भी बनाई है, लॉज भी बनाए हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से। अब जैसे इसमें दिखाया गया है, द विलेजर्स ऑफ Jakmalgarh are gearing up for a big festival. Once in 5 years, the local deity is honored and priests from 20 neighboring villages come for the 5-day event. तो 20 आसपास के गांव के लोग अपने देवता की पूजा करते हैं 5 साल में एक बार। Ceremony begins with a member of Dalit community washing the feet of all priests and bathing in the water used for this. ये सेरेमनी कैसे स्टार्ट होती बताओ? बताती नहीं है तुम, सही इधर उधर देख लेती हो। हाँ, सो दैट इज दलित जो होता है वो सभी ब्राह्मणों के पैर धोएगा और जो उससे पानी निकले उससे खुद ना आएगा। तो बोलो क्या एक अच्छी प्रथा है? ये तो गलत प्रथा है। तो दे वर नेवर अलाउड टू एंटर द टेंपल। और फिर इतना करने के बाद ये रथनाम की फैमिली है और उनको मंदिर में आने भी नहीं दिया जाता है। दिस रिचुअल वाज व्यूड एज ए ग्रेट ऑनर बेस्टोड ऑन देम ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। और ये बहुत बड़ा माना जाता है कि उनको पैर धोने दिया गया ऐसा। He said he has no faith in this practice and this family member are forced to perform this ritual, क्योंकि वे दलित हैं तो उनको ऐसा करवाया जाता है। Those from Rathnam's own caste were fearful of angering the powerful. Many worked on their fields. बहुत सारे लोग सोचते हैं चलने दो क्योंकि उन्हीं के तो सब खेत हैं और वो हमें काम देते हैं। अभी हम कुछ बोलेंगे तो कल से कहो काम पे ना करें, हमें दिहाड़ी ना दें, हमसे अपने खेतों में काम ही ना लें, तो इसलिए वो कुछ बोलते नहीं हैं। तो his community was ordered to ostracize him and his family, and everyone was told that no one should speak or do any work for them. The powerful caste decided Rathnam election. अब रत्नाम ने क्या किया देखो, argued that given that not a single Dalit had ever entered the temple, how could the deity be angry with them? तो इसलिए जब रत्नाम से कहा गया कि तुम उनके पैर धो, तो रत्नाम ने कहा मेरे पिता ने धोया है, मेरे दादा ने धोए हैं, तो मैं तो नहीं धोऊंगा, मैं तो अब आजाद भारत का सिटीजन हूँ। तो वो लोग बोले, ब्राह्मण लोग, तुम अगर नहीं धोगे तो देवता नाराज हो जाएंगे, डीटी विल बी एंगर्ड। तो रत्नाम ने बोला, हाउ द डीटी विल बी एंगर्ड, आई वॉज नेवर अलाउड टू इंटर द टेम्पल, मुझे कभी भी मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दिया गया, तो देवता कैसे नाराज हो जाएंगे? क्या वो सही नहीं बोल रहा है? तो वो चीज ये बोल रहा है। अब देखो ऑस्ट्रेसाइज का क्या मतलब है, इसका लिखा होगा, नहीं लिखा है। So his community was ordered to ostracize him and his family, and everyone was told कि वो उसको बहिष्कृत कर दिया गया, ऑस्ट्रेसाइज कर दिया गया कि रत्नाम ने पैर धोने से मना किया है और वो पानी से नहाने से भी उसके परिवार को बहिष्कृत कर दो। कोई दूसरा दलित अब रत्नाम के परिवार को जो साथ देगा, फिर उसको हम खेत पर नहीं बुलाएंगे बटाई के लिए या कटाई के लिए। समझ आई बात? तो ऐसा करना पड़ा। अदर दलित फैमिलीज स्टिल डिड नॉट कम आउट इन दिस सपोर्ट। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर उसने फाइल, ये सही एक्ट है, देखो इसका हवाला भी दिया गया है। फिर उसने क्या किया बोलो, लोकल पुलिस स्टेशन में गया और ये उसने हवाला दिया कि शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट 1989 का हवाला दिया कि रिफर किया कि हमसे वो सही बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। सो द केस वाज पिक्ड अप बाय लोकल मीडिया। फिर उसको मीडिया ने हाईलाइट कर दिया कि उसके साथ ऐसा हो रहा है।
To many journalists visiting the village, Rathnam was written about the symbol of Dalit action. और रत्नाम को एक माना गया कि अगर हम रत्नाम को इंसाफ दिला सके तो हम दलित को दिला देंगे। इस तरीके से द रिचुअल वॉज कॉल्ड ऑफ, और ऐसा होने से ये प्रथा ही बंद हो गई कि कोई भी दलित अब ब्राह्मणों के पैर नहीं धोएगा। तो इस चीज को मिटाने के लिए ही क्या मोदी ने जो काम करने वाले वर्कर हैं, क्या उन सबके पैर धोए थे और उस पानी को अपने सर पे लगाया था? उन्होंने उल्टी प्रथा चलाई थी। क्या आपको मालूम नहीं है? ये नहीं देखा? तो देखो, तो ये दिखाने के लिए कि हम उनका सम्मान करते हैं। जिनसे आप पैर धुलवा रहे हो हम उन्हीं के पैर धोएंगे। मोदी ने दलितों के पैर धोए। तो ये चीज बताती है कि हमारे प्रधानमंत्री सेंसिटिव है इस केस को लेकर। देखो, मोदी washed the feet of workers। ये देखो,